ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਔਨ ਲੋਡ, ਨੋ ਲੋਡ, ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲੌਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਲੌਸਿਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 kVA ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ 8 kVA ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 kVA ਜਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੌਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਲੌਸਿਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੌਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ 1, ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੀਕੇਜ ਫਲਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ। ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਰੰਟ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ I²R ਲੌਸਿਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ I²R ਲੌਸਿਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਕੱਢਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਆਉਣਗੇ I1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ? I2 ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰੰਟ ਤੇ R2 ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੌਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੌਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਲੌਸਿਸ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਲੌਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ PC ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। P ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, C ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਲੌਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੂਸਰੇ ਲੌਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰ ਲੌਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਰ ਲੌਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੌਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਡ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੌਸਿਸ ਵੀ, ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਵੀ ਕੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਆਸਾਨ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੌਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਰ ਲੌਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਇਰਨ ਲੌਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਇਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। that is why it is called core or iron losses। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੌਸ ਅਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੌਸਿਸ ਅਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਲੌਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲੌਸ। ਕਿਹੜੇ? ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲੌਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਨ ਲੌਸ ਜਾਂ ਕੋਰ ਲੌਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲੌਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? K ਪੈਰ 'ਚ H, ਇਹ ਕੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਲੌਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਲਕਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਫਲਕਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਟਸ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਕਿਉਂ ਵੋਲੀਅਮ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲੌਸਿਸ। KE, ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ F² BM ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲਕਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ T ਥਿਕਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਵਾਟਸ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਲੌਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਥ ਲੌਸਿਸ
ठीक है, बोथ लॉसिस, ठीक है, बोथ केड़े केड़े मैं इत्थे लिख ही दिना वा, क्योंकि जे उपर तुसीं ओह ना समझ लो कॉपर ते कोर लॉसिस, इहदे विच हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसिस, एडी करंट लॉसिस डिपेंड्स अपॉन किहदे किहदे ते डिपेंड करनगे, किहदे ते डिपेंड करनगे, एक करनगे फ्रीक्वेंसी ते एफ ते एक करनगे मैक्सिमम फ्लैक्स डेंसिटी ते, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ते दोनों ते। हुण जिवें कि सानू पता ही है कि जिहड़ी ट्रांसफार्मर दे विच जिहड़ी फ्रीक्वेंसी होनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की हुंदी है, कांस्टेंट हुंदी है, फ्रीक्वेंसी की हुंदी है, कांस्टेंट हुंदी है। ओके, तो जे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो यदा मतलब की आ कि जिहड़ी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है तो सप्लाई वोल्टेज वो भी कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज भी की है, कांस्टेंट है ट्रांसफार्मर की। इस करके जिहड़ी फ्रीक्वेंसी एफ है इहदी गल करते पे हाँ, एंड बी एम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ये दोनों कांस्टेंट होणगे, ये दोनों की होणगे, कांस्टेंट होणगे। हुण इहदे विच देखो कि जिहड़े पावर ते आयरन लॉस ने किते डिपेंड करते पे ने, फ्रीक्वेंसी ते मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ते ये दोनों की ने, कांस्टेंट। इस करके इनू की आखदे ने, इनू कहंदे ने कांस्टेंट लॉस। की कहंदे ने? कांस्टेंट लॉस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है तो वोल्टेज भी कांस्टेंट है। ओके, एक ਆਪਾਂ ना कॉपर लॉसिस ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके समझना है की ਹੁੰਦਾ है कई बारी कि बड़ा इंपोर्टेंट है, कॉपर लॉस ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है, कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस जेकर मान लो साढ़े को है 1200 वाट, ठीक है, तो ਜਿਹੜੇ आयरन लॉस ने, आयरन लॉस वो है ने 1600 वाट ਜਾਂ 800 वाट कर दीए, कोई वैल्यू ले ली 800 वाट। तो जे टोटल लॉस सानू पुछ लैन, टोटल लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, टोटल लॉस इन अ ट्रांसफार्मर की आएगा? आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ठीक है, आयरन लॉस किन्ने ने? 800 प्लस कॉपर लॉस किन्ने ने? 1200। किन्ना आ गया? 2000 वाट। ये आंसर आएगा। हुण आपां पता करना है एट हाफ लोड, एट हाफ लोड, एट हाफ लोड, हाफ लोड के उत्ते ये लॉसिस किन्ने रह जाएंगे? हाफ लोड। हुण तुसीं देखो हाफ लोड के उत्ते की करना, आपां सिंपली कांस्टेंट जिहड़े लॉस ने कांस्टेंट ही रहने, भावें नो लोड होवे भावें फुल लोड होवे, जिहड़े कांस्टेंट लोड ने उन्होंने इन्ना ही रहना है। प्लस हाफ लोड की गल कीती आ, हाफ लोड का मतलब करंट भी अद्धा हो गया, तो करंट की हुंदा है उत्थे दस्सिया स्क्वेयर, इत्थे आ जाएगा स्क्वेयर इनटू 1200। ठीक है, इंटू 1200। हुण की आ जाएगा साढ़े कोल? प्लस 1/4 गुणा 1200। ठीक है, किन्ना आ गया? 300। 300 आ गया ना, तो साढ़े कोल किन्ने लॉसिस आ गए? फिर किन्ने आ जाएंगे इत्थे? टोटल लॉस किन्ने आ गए? 1100 वाट। ठीक है, इतों सानू की पता लगा कि जेकर लोड हाफ कर दिता जाए तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाते हैं। कॉपर लॉस किन्ने हो जाते हैं? 1/4 हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखियो। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एट फोर्थ लोड। ठीक है, 3/4 लोड, इत्थे भी आप सेम उही चीज़ करनी है। किन्ना आ जाएगा? कांस्टेंट लॉस सेम रहणगे। ठीक है, 3/4 की स्क्वेयर आ गया इंटू 1200, इंटू 1200 किन्ना आ जाएगा? प्लस 9/1600, 16 इंटू 1200। ठीक है, ये किन्ना आ जाएगा? 8, 600, 4, 300, 2, 150, एक इत्थे आ गया साढ़े को 75। ठीक है,
तो 75 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 600 ਤੇ 750 ਤੇ ਇਹ 600 ਤੇ 55 ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 655 ਆ ਜਾਣਾ 655 ਨਹੀਂ 750 675 ਆਏਗਾ ठीक है 675 ओके। तो ये लगभग साढ़े को किन्ने आ जाने 1475 वॉट जिहड़े आ लॉसिस होणगे किहड़े जो 3/4 लोड होया ओके। ये तुहानूं कढना आउणा चाहीदा है क्लीयर। नैक्सट है एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर ओके। एफिशिएंसी के इक्वल होंदी है आउटपुट पावर टू दी इनपुट पावर। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर टू दी इनपुट पावर क्लियर। आउटपुट पावर टू दी इनपुट पावर ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट प्लस लॉसेस क्लीयर। इस कोई प्रॉब्लम तो लॉसिस जिहड़े ने वो किहड़े हो सकते हैं उपर मैं तुहानूं दस्सिया ही आ। एक हो सकते कॉपर लॉस एक हो सकते आयरन लॉस। कॉपर लॉस के लिए आपां किहड़ा टैसट परफॉर्म करांगे ट्रांसफार्मर जिहड़े टैसट आपां लास्ट लैक्चर दे विच पढ़े सी शॉर्ट सर्किट टैसट आपां कंडक्ट करवावांगे ट्रांसफार्मर के उत्ते। तो आयरन लॉसिस वास्ते आपां किहड़ा करांगे ओपन सर्किट टैसट जिहड़ा वा वो कंडक्ट करवावांगे ट्रांसफार्मर के उत्ते ते सानूं उत्थों लॉसिस मिल जाणगे। हुण ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस आ इस करके जिहड़ी इहदी एफिशिएंसी आ वो 98% हुंदी है। स्टैटिक डिवाइस होने करके जी एफिशिएंसी आ वो 98% तो अबव होएगी घट नहीं होंगी ठीक है। हुण तुसीं देखो कि जे सानू फुल लोड आयरन लॉस चाहिए आयरन लॉस आपां कैलकुलेट करने आ ठीक है। उहदे लई आपां किहड़ा टैसट कंडक्ट करांगे ओपन सर्किट टैसट। किहड़ा करांगे ओपन सर्किट टैसट क्लीयर। जे सानू फुल लोड कॉपर लॉस चाहिए आ जां मतलब कैलकुलेट करने आ फिर उहदे वास्ते आपां किहड़ा टैसट कंडक्ट करवावांगे शॉर्ट सर्किट टैसट। शॉर्ट सर्किट टैसट तो इन्हां दा ये फायदा हुंदा है जिहड़े आपां ट्रांसफार्मर टैसट कंडक्ट करवाउने कि आपां ट्रांसफार्मर नूं विदाउट एक्चुअली लोडिंग ठीक है विदाउट एक्चुअल लोड पाया ये जिहड़े आपां मतलब जिहड़ियां कैलकुलेशनस ने जां मतलब जो सानूं वैल्यूज़ चाहिदियां ने वो आपां कैलकुलेट कर लैंदे आ मतलब कि सानूं वैल्यूज़ वो मिल जांदियां ने ओके। नैक्सट हैगी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ओके। यदि कंडीशन की होंदी है मैक्सिमम एफिशिएंसी सानू कदों मिलती है जदों आयरन लॉस इक्वल हो जाए कॉपर लॉस के ठीक है। जदों आयरन लॉस इक्वल हो जाए कॉपर लॉस के ओके। जो मैक्सिमम हुण देखो पी आई इज इक्वल टू कॉपर लॉस के इक्वल होंगे आ
I2 secondary current or I2 दी स्क्वेयर आर नॉट 2 मतलब इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आ गई ना, तो वो अपन करंट देखना है। ठीक है, लोड करंट I2 कोरसपोंडिंग टू दी मैक्सिमम एफिशिएंसी। जे करंट कह देना मैक्सिमम एफिशिएंसी तो कितना होएगा, तो उन्होंने आप कितना कैलकुलेट करांगे। दी लोड करंट I2 corresponding to maximum efficiency ओके। ये कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय R नॉट 2। ओके, जेकर मैक्सिमम एफिशिएंसी आप ऑबटेन करनी है ट्रांसफार्मर तो सानू की करना पेगा, जोड़े आयरन लॉस व कॉपर लॉस के इक्वल करने पैणगे। ओके, नैक्सट है आउटपुट KVA कोरसपोंडिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी ठीक है, हुण PC की आ, PC है वा कॉपर लॉसिस एट फुल लोड KVA, कॉपर लॉसिस एट फुल लोड KVA। ओके, PI की है, व्हाट इज PI है आयरन लॉसिस। ओके, देन X, व्हाट इज X हैगी लोड दी फ्रैक्शन। मान लो वो लोड फुल लोड है, हाफ लोड है, 1/4 है या 3/4 है। ओके, तो उन्होंने आप करांगे रिप्रजेंट X के नाल, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड KVA at which efficiency is maximum, क्लीयर। तो फिर ये वैल्यू कि इक्वल आ जाएगी, X की वैल्यू जो आप कढ़नी हो तो कि इक्वल आ जाएगी X इज इक्वल टू आयरन लॉसिस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉसिस। ओके, इनू आप इस तरह लिखना होंगे है। इनू आप इस तरह लिखना होंगे है, X² PC इज इक्वल टू PI। ओके, नैक्सट की आ, हुण आप की करना है, आउटपुट KVA कढ़नी है। आउटपुट KVA कोरसपोंडिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये कहते इक्वल आ जाएगी X मल्टीप्लाई बाय फुल लोड KVA, फुल लोड KVA। ओके, तो X की वैल्यू कहते इक्वल आ, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फुल
लोड KVA मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ अंडर रूट PI/PC। क्लीयर। ओके, नेक्स्ट है ऑल डे एफिशिएंसी। नेक्स्ट है ऑल डे एफिशिएंसी। ऑल डे और, ठीक है, इनू एनर्जी एफिशिएंसी बोलते हैं, और एनर्जी एफिशिएंसी। और एनर्जी एफिशिएंसी हुण इहदी वैल्यू किहदे इक्वल आ जाएगी ऑल डे एफिशिएंसी दी आ जाएगी KWH आउटपुट इन 24 आवर्स डिवाइडेड बाय KWH इनपुट इन 24 आवर्स। 24 आवर्स। ओके, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, ये सी ट्रांसफार्मर का जोड़ा बेसिक जोड़े पॉइंट सी वो तुहानूं मैं करवा दिते हैं। ओके, जिन्होंने लास्ट लैक्चर नहीं सुने वो लैक्चर सुन लें। क्लीयर। ओके।